Hi guys, and I hope you are doing all right. So let me introduce myself. My name is Shivan Chapra, and I'm a student of Ostheimer Business School. And this is my first video on my YouTube channel. So I hope everyone likes it, and please share your review at the end of the video. And please subscribe and like my video. So let's enter into the world of digital marketing. What is digital marketing? This is a very vast concept nowadays, and everyone must be using what is digital marketing, must be wondering how e-commerce brands are using it. So digital marketing is a kind of magic, you know. Either your brand awareness will be at the top-notch level, otherwise it will be at like you are not growing. So understanding the basics of digital marketing is very important. So let's start. कि what is digital marketing? Digital marketing होता क्या है? Digital marketing or online marketing we can say, or even we can say internet marketing, which communicates messages through digital channel, access through electronic device including phones, computer and tablets. So digital marketing में हमें कोई specific environment नहीं चाहिए काम करने के लिए. We are already on our phones, laptops, and tablets. Phones are easy portable, tablets are portable, and even nowadays laptops are also portable. So no one needs to worry कि भाई क्या करना है, क्या कैसे करना है. कहीं पे भी बैठ के काम हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का. आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे करना है. तो जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर जितने भी आप गूगल सर्च वगैरह करते हो, आप वहां से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स पता है तो अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कर रहे हैं कुछ भी, वो डिजिटल मार्केटिंग है. गूगल पे अगर आप कुछ देख रहे हो, आपने कोई कीवर्ड डाला, सर्च कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है वो आपकी साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी से खेल रहा है वो बेसिकली. तो ये है डिजिटल मार्केटिंग. अब हम समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग. पहले मार्केटर कैसे करते थे और अब क्या ट्रेंड चल रहे हैं. आजकल तो बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं. यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग बेसिकली, बट यू आर नॉट अवेयर कि ये डिजिटल मार्केटिंग होती है. सो माई अल्टीमेट गोल इज टू टीच यू और टू टेल यू कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ताकि आप उसमें बेसिक्स में भी थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लगा पाओ. एंड अगर ये वीडियो बेनिफिशियल हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा गोल रहेगा. So digital marketing and traditional marketing such as print ads and direct mail share the same ultimate goal. तो ये एक ही अल्टीमेट गोल पे काम करते हैं कि हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस या ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है. हमें कस्टमर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करना है टू ड्राइव सेल्स. बट द व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग इज इट यूजेस इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेट एंड इंगेज विद टारगेट ऑडियंस. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा और तरीके से काम करता है. वो थोड़ा टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं कर पाता है. ठीक है. अब जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सारी टेक्नोलॉजीज पे ही काम चल रहा है. हम अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं. अब अब और क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग. सो वेर एवर आई से कि ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, I mean digital marketing itself. So online marketing is now, or digital marketing is now is a key component in most businesses marketing plans, primarily because of the widespread use of digital technologies. Everyone is using digital technologies. You must remember that even from a 15-year-old kid and to a 60-year-old person is having their phones every time with themselves. So you need to market that. You need to market that 10-year-old parents who have phones right now. Maybe they are not using it, but they will in an hour or in an 2 hour. They will pick up their phone, use it, scroll Insta. If you can target those kind of people, if your product has that availability or that criteria that you can target those, so I think you are a good marketer if you can reach those brands, and it can definitely deliver outstanding results. So, right now we will discuss what are the objectives of digital marketing. I hope the meaning of the digital marketing is clear. Now let's begin with objectives. So we have first one is increase brand awareness. If you are doing digital marketing on any of the platforms, it can drive brand awareness to a top notch level. Suppose you are promoting on Instagram. Okay. And if your target audience is maybe
15 age to 22 age or 25 age. Let's take it 30 age. Everyone is using Instagram right now or these days. So if you can target those kind of people with some specific keywords, whatever they are using in their daily lives, so that's how you can increase your brand awareness, right? Generate leads. If you are in a B2B company, so and you are offering services, right, which can generate leads, they can land up to your website and sign up for that. Increase direct sales. Everyone in this economy is having their e-commerce brand website for direct sales. If you can target those particular consumers who you want to target and increase your direct sales through digital marketing, because nobody wants to give commission to Myntra and other e-commerce giants. They are existing right now. So agar you can pull those customers from Myntra and Amazon to your own website, that means you are increasing your direct sales and you are eliminating the commission part. That's very important. If you have cracked that, I think you are a good digital marketer because you have put your awareness in those e-commerce, uh, I would say, in those people minds. Improve customer engagement. Whatever the post you are posting, वो कस्टमर को engage करना चाहिए. Whether it's related to sales, whether it's related to new product, कुछ innovation है. So वो एक conversion rate आपका increase करेगा एंड कस्टमर एंगेजमेंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो कस्टमर हो सकता है आगे दो चार लोगों को और बताए, तो उससे आपका ट्रैफिक ड्राइव होगा, कस्टमर एंगेज होगा. इम्प्रूव कन्वर्जन रेट कैसे होगा? अगर आप अपनी ऑनलाइन अवेयरनेस, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो, तो देयर आर मल्टीपल टूल्स विच कैन सी कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है. सपोज गूगल एनालिटिक्स लेते हैं, आपने पर्टिकुलर कोई सेगमेंट टारगेट कर रखा है, डेमोग्राफिक जैसे लाइक डेली टारगेट कर रखा है, तो डेली में आपके कितने लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके किस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपको वो चीज पता चल जाएगी एंड उससे आप एक स्ट्रैटेजी बना के अपने कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हो. ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम. डिजिटल मार्केटिंग में तो पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने अपने पास से, अगर आपके पास जीरो पैसा भी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो. बस आपको थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए नॉलेज की, आपको कीवर्ड्स क्या यूज करने हैं, आपको कैसे मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको अपना ब्रांड कैसे स्टैंड करना है, उसकी स्टोरी क्या है. अगर आप वो करते हो तो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम पक्का आएगा आपकी वेबसाइट पे या आपके प्रोडक्ट पे जो भी है. रिड्यूस बाउंस रेट. डिजिटल मार्केटिंग में बाउंस रेट आप कम कर सकते हो. कैसे? जब आपने कन्वर्जन, आपने कोई सेल्स ली, अगर वो आपके पर्टिकुलर ऑडियंस में रीच कर रही है एंड दे आर ऑन दैट पर्टिकुलर एड टू कार्ट पेज, तो आप वहां से उनको एक और ऑफर देके उनको कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां से बाउंस रेट कम हो जाएगा. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. एडवांटेजेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा खर्च नहीं होगा, मेजरेबल अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, टारगेट एडवर्टाइजिंग, आप पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर सकते हो, ग्लोबल रीच, ये नहीं कि खाली इंडिया के लोगों को टारगेट करना है, आप मल्टी लेवल कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो. पर्सनलाइजेशन, आप अपना एक फीड और एक अपना टच ब्रांड का क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप मिंत्रा और अमेजोन या फिर कोई भी वेबसाइट है उस पर या कोई भी ई कॉमर्स साइट है उसमें नहीं कर सकते. डिसएडवांटेजेस, एक हाई कंपटीशन है, आपको हमेशा डिजिटल मार्केट में compete करता ही रहना होगा, आपको कांस्टेंट अपडेट्स देने पड़ेंगे. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट बेनिफिशियल भी है. ठीक है. एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज आ सकते हैं बट ठीक है, ये तो अपन को मैनेज करना ही पड़ेगा. देन वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में हमारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. लेट्स कवर दैट वन बाय वन. Let's see. First one is SEO. So SEO stands for Search Engine Optimization, which is a vital digital marketing strategy for business that benefit from driving traffic to their websites. So basically, हम जैसे कोई भी कंज्यूमर है वो गूगल पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका अगर प्रोडक्ट, जैसे मेरी वीडियो है सपोज डिजिटल मार्केटिंग वीडियो, तो मैं अपने प्रोडक्ट को ऐसे, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग को सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने उस चीज में ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं कि मेरा प्रोडक्ट टॉप रैंक करे. सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, अब मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ, इट कुड बी एनी वर्ड और एनी फ्रेज एज वेल, राइट. सो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल,
digital marketing in Delhi, digital marketing in Dwarka, digital marketing in XYZ place. So these are the kinds of keywords you have to go through it, research on your own कि आपका ब्रांड किस लेवल का है, मतलब किस लेवल का है, आई मीन टू से कि क्या वो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी कीवर्ड्स क्या होंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट गूगल सर्च पे अच्छे से स्टैंड कर सकता है। ठीक है, देन वी हैव अनदर पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग इज वेयर यू सेल डिजिटल मार्केटिंग। भाई ये कहाँ से आ गया यार। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, पे पर क्लिक, पीपीसी एडवर्टाइजिंग। पीपीसी एडवर्टाइजिंग बेसिकली व्हेन यू pay a fee to someone clicks on your digital ad. Suppose on the Google, when the first thing appears, you click on an ad, right? So Google उसके पैसे लेता है। ठीक है, इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर क्लिकिंग ऑन अ वेबसाइट, तो इंस्टाग्राम उसके एडवर्टाइजिंग के पैसे ले रहा है। वो पेड होती है, वहां पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको पता चल जाता है कि पेड एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि वो बहुत बार आती है, इंस्टाग्राम उसके पैसे ले रहा है, या फेसबुक भी उसके पैसे ले रहा है वहां पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो उस हिसाब से वो एडवर्टाइज कर सकते हो। देन वी हैव सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग is one of the most popular forms of digital marketing. इसमें यूनाइटेड स्टेट्स अलोन में ओवर 308 मिलियन पीपल एक्सेस अ सोशल नेटवर्क एटलीस्ट वंस पर मंथ। आप सोच लो कितनी बड़ी मार्केट है। एवरी वन इज यूजिंग सोशल मीडिया राइट नाउ। वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे होंगे ही होंगे। तो अगर आप उसमें से भी कुछ परसेंट को टारगेट कर सकते हो और अपनी ब्रांड पे ला सकते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग तो आई थिंक आई वुड से बल्ले बल्ले। सो आप उनको इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो अबाउट स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड शॉपिंग जो भी उनको करनी है। देन वी हैव कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज फॉर एग्जांपल दिस यूट्यूब वीडियो। ठीक है, अगर मैं इस यूट्यूब वीडियो में आपको कुछ समझा रहा हूँ या फिर कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा हूँ, दैट इज कंटेंट। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग लिख रहे हो, दैट इज कंटेंट। उसके कीवर्ड से आप ड्राइव सर्च कर रहे हो, वो एसईओ का पार्ट हो जाएगा और कंटेंट मार्केटिंग का भी पार्ट हो जाएगा। सो कंटेंट मार्केटिंग ये होती है। ईमेल मार्केटिंग इज आप पर्टिकुलरली जो भी आपके आई वुड से डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको ईमेल भेजते हो, या एग्जिस्ट भी नहीं करते, कहीं से आपको डेटा मिलता है। ठीक है, आप उनको ईमेल भेजते हो, आप उनको ईमेल टारगेट कर रहे हो कि भाई मेरा ईमेल खोलो, वेदर ऑन जीमेल और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आप उसको टारगेट कर रहे हो कि भाई ये ऑफर है, आज खरीदेगा तो ये मिल जाएगा, आप ईमेल से उसे फोमो फील कराना चाहते हो, तो ईमेल मार्केटिंग होती है। एफिलेट मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप किसी और की कंपनी का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो। सपोज मैं किसी की कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ और आपने मेरे लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, सो आई विल गेट अ कमीशन। सो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर कंपनीज कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू एंडोर्समेंट और रिकमेंडेशन फ्रॉम पॉपुलर फिगर्स नोन एज इन्फ्लुएंसर्स। सो अगर आपने कोई भी, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी, इफ दे आर प्रमोटिंग एनीथिंग, यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार अगर ये प्रमोट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सही ही होगा, राइट, इसमें गलती नहीं होगी। तो आप उस जो ब्रांड ओनर है वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है कि इस इन्फ्लुएंसर का मैं लेता हूँ कि पब्लिक का काफी ज्यादा ट्रस्ट है, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। देर आर लॉट्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, बट अगर आपने ये डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे पॉइंट्स क्रैक कर लिए हैं, तो आपको अच्छा डिजिटल मार्केटिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। सो that's the end of my video. Thank you for watching it. I hope you enjoyed. If you ever like my video, so you can just press like
button and share it and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thank you so much. Goodbye.